2, that is straight lines. Now we have already completed the chapter straight line from board point of view. तेच कन्सेप्ट या ठिकाणी काहीतरी असणार आहेत, काही नवीन कन्सेप्ट येतील ते पण आपण डिस्कस करूया. So first point is this: equation of a line having slope m and y-intercept c is what? It is y is equal to mx plus c. So this we know, है ना? ये हमें मालूम है. Slope intercept form of a line is y is equal to mx plus c, where m is slope and c is y-intercept. बट इन केस हमारे पास बोर्ड में देखिए हमने एक फॉर्मूला नहीं देखा कि एक्स इंटरसेप्ट अगर मालूम होगा तो डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखना. सो फॉर दैट वी हैव रिटन दिस शॉर्टकट: इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m and x intercept d is y is equal to m in bracket x minus d. So that is the shortcut for writing equation of any line having slope m and y x intercept as d. ठीक है. सेकंड थिंग, हमने एक प्रॉब्लम इसके ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. Let us say it is AB. It is given by under root a square plus b square, where a is x intercept and b is y intercept. अभी बड़े आसानी से आपको मालूम है. ठीक है. What we are talking about? We are talking about this distance AB. This is point A, this is point B. So we are talking about this distance AB. And obviously it is nothing but by Pythagoras theorem you can say that this is hypotenuse, this is side 1, this is side 2. X intercept is always A, Y intercept is B. Then we get length of AB as under root A square plus B square. Clear? Next thing, area of triangle OAB. यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ देखिए अभी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिन O, पॉइंट A, पॉइंट B. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB is nothing but AB upon 2. अगेन A is x intercept, B is y intercept. क्या फार्मूला होता है एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट. सो हाफ इंटू बेस इज A, हाइट इज B, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल. ठीक. So in this case, we can directly find out area of triangle OAB by AB upon 2 if we know A intercept and X intercept and Y intercept as A and B. Next point, distance or parametric or symmetric form. Now we have taken different forms of equation of a line. हमने 5 फॉर्म देखे थे. कौन कौन से 5? स्लोप पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट. ठीक. और पांचवा नॉर्मल फॉर्म. अभी उसके आगे हम एक और फॉर्म देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म. Now equation of a line in this form is given by these two equations. Basically these are not two equations. You can say that this is x coordinate comma y coordinate of a general point P x comma y. So where x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta. Where we have drawn this figure. This is a general point P x comma y. Let us say this is a point A. It is a given point A whose coordinates are x1, y1. ठीक है. And if this line is making an angle of theta with positive direction of x-axis, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो राइट हैंड साइड पर जो एंगल किया, लेट इट बी थीटा. Distance between this point A and this general point P is, let us say it is r. Then in that case we get this equation. ठीक है. Where theta is a parameter. Here theta is a parameter. So x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta. Or it can also be written as x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r. ठीक है. इसी से आपको ये चीज भी मिल सकती है. Next, now if you have to find out any point on this line, any point at a certain particular distance from A, अगर हमें ढूंढना होगा, so we have this formula: the coordinates of a point which is at a distance of r
यूनिट्स फ्रॉम ए x1 y1 r। अब देखिए यहां से ए से r यूनिट्स पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने हैं। अब यहां से r यूनिट्स या तो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। सो इट मीन्स यू विल गेट 2 पॉइंट्स। अगर किसी भी लाइन के ऊपर दिस इज से लेट अस से दिस इज द लाइन, दिस पॉइंट ए इज गिवन और आपको पूछा गया कि ए से 5 यूनिट्स डिस्टेंस पर, ठीक है, कौन सा पॉइंट है या फिर कौन से पॉइंट है। so there will be obviously 2 points on this line, on this line. So here this is one point at a distance of 5 units and this is another point which is at a distance of 5 units. So we always get 2 points equidistant from any point on a line. तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है दे विल बी गिवन बाय इन दिस फॉर्मेट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आपको चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला। बेसिकली यही फार्मूला है। देखिए x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट जो होगा आपका कैसे मिलेगा, x1 प्लस और माइनस r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी गिवन बाय y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। ठीक, मतलब प्लस और माइनस क्यों है, एक उधर एक इधर, 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। जनरली ये चीज होती है, ठीक है। हमने बोर्ड में इस टाइप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़े से शॉर्टकट जहाँ पर हमें मिल सकते हैं। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप्स आर इक्वल। ठीक, सो व्हाट वी डू उसके लिए शॉर्टकट क्या है, अगर आपको किसी भी गिवन लाइन को पैरेलल लाइन ढूंढना है तो फर्स्ट रूल, डू नॉट चेंज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, डू नॉट चेंज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। मान लीजिए दिस इज वन लाइन 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and we have to find a parallel line to this. So obviously it will be in the format of 2x plus 3y। आगे मैंने बताया नहीं अभी, ठीक है। तो x और y के कोएफिशिएंट आप चेंज ना करिए, x और y के कोएफिशिएंट आप चेंज नहीं करेंगे, जस्ट यू हैव टू चेंज द कांस्टेंट टर्म टू लैम्बडा। जो कांस्टेंट टर्म है दैट यू हैव टू चेंज एंड लेट इट बी लैम्बडा, क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है कि लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा you will get n number of or you will get infinite number of lines parallel to this given line। जैसे जैसे लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी you will get different number of n number of parallel lines to this line। ठीक, लैम्बडा के अलग अलग वैल्यूज के लिए। आउट ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर लाइन। ठीक, वो कैसे मिलेगी आपको, सो टू फाइंड लैम्बडा यूजिंग सेकंड गिवन कंडीशन, you have to find out value of lambda by using second given condition। second given condition होती ही है, it may be in terms of slope, it may be in terms of slope तो नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि slope तो ऑलरेडी इक्वल है इनके। तो it may be in terms of let us say any point passing through any point। so line parallel to this line and passing through any other point। ठीक है, कोई और एक पॉइंट होगा जहां से पास होने वाली, तो सेकंड जो कंडीशन है आप इस इक्वेशन में यूज कर करके आप लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेट अस से अगर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन जो है, लेट अस से सेकंड कंडीशन है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू 1 2। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 बिकॉज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। So we'll get what 1 मतलब यहाँ पे 2 into 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 into 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 into 2 6 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। So we'll get lambda is equal to -8। तो ये हो गई दूसरी लाइन which is parallel to this line and passing through the point 1 2। क्लियर, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू आप क्या डाल देंगे, -8। तो आंसर आपका होगा 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। So in this way we will find out parallel line to a given line। ठीक, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, पूछिए। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। हमने पैरेलल का देखा, अब हमें क्या देखना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए
गिवन लाइन, मान लीजिए दिस इज अ गिवन लाइन, sorry, this is a given line, ठीक है, 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and you have to find out a perpendicular line to this line. क्लियर? उसके लिए क्या है, तो फर्स्ट थिंग इंटरचेंज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, x और y के कोएफिशिएंट आप इंटरचेंज कर दीजिए। सेकंड थिंग चेंज साइन ऑफ एनी वन ऑफ देम, दोनों का साइन चेंज आपको नहीं करना है, दोनों में से किसी एक का, आप तो या तो x कोएफिशिएंट का कर लीजिए या तो y का कर लीजिए, ठीक है, x का करिए या फिर y का करिए, दोनों में से किसी एक का आप साइन चेंज कर दीजिए। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग चेंज द कांस्टेंट टर्म टू लैम्बडा, वो चीज सेम है, कांस्टेंट टर्म को आप लैम्बडा कर देंगे एंड फाइंड लैम्बडा फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, जैसे यहाँ पर थी सेकंड कंडीशन उसी तरीके से आप सेकंड कंडीशन से लैम्बडा ढूंढेंगे। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्बडा टू गेट द न्यू इक्वेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज अ गिवन लाइन, वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर लाइन टू दिस। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे मिलेगी आपको, तो x और y के कोएफिशिएंट आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो 2x और 3y है, इसे मैं लिख लेता हूं 3x प्लस 2y माइनस, या फिर यहाँ पर तो लिखना ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया x और y के कोएफिशिएंट, 2x प्लस 3y था, मैंने कर दिया 3x प्लस 2y। सेकंड थिंग करना क्या है आपको, चेंज साइन ऑफ एनी वन ऑफ देम, किसी एक का साइन चेंज करिए, तो अब x का नहीं करूंगा मैं कर दूंगा y का। स्टार्टिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, स्टार्टिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए आप x का भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो मैंने y का साइन चेंज कर दिया, फिर आपको लगाना है इसके आगे लैम्बडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्बडा अगेन इन द सेम वे एंड यू विल गेट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ठीक, नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं तीन लाइंस की। इफ p इज इक्वल टू 0, q is equal to 0, r is equal to 0 are three lines। मान लीजिए ये there are three lines p, q and r, then p plus q plus r equal to 0 अगर होगा, it implies lines are concurrent, it means they are passing through a single point। ठीक है, p plus q plus r भी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, then we can say that the lines are concurrent। but remember converse of this is not true, converse of this is not true। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो p plus q plus r 0 ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, लेकिन अगर 0 है तो आप पक्का ये कह सकते हैं कि these lines are concurrent। ठीक, नेक्स्ट, distance between two non-parallel or intersecting lines is always 0। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए फार्मूला है हमारे पास, हमने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लर्न लूंगा मैं अगले एक दो दिन में, फार्मूला लर्न लेना पड़ेगा 8.1 का भी और 8.2 का भी। ठीक है, क्लास में ही लाइव हम लर्निंग ले लेंगे, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप में से कोई मुझे याद दिलाएगा, पक्का? ठीक, तो करना क्या है हमें, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस होगा या फिर इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल मतलब क्या हुआ, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और मे बी कोइंसिडेंट लाइंस, ये भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, सो इट इज ऑलवेज 0, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर मीट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका मतलब दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट एंड ऑब्वियसली इफ दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट देन देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, नेक्स्ट थिंग, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू लाइंस, हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0, so this is line 1। another line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0। then the equations of angle bisectors are
a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ठीक है। इसका मतलब दो इक्वेशंस आएंगे, इसका मतलब दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है। प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सो देयर विल बी ऑब्वियसली टू एंगल बाइसेक्टर। कैसे होंगे देखिए, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। सो लाइन 1 और लाइन 2 में देयर आर टू एंगल्स, देयर आर टू एंगल्स, एक तो होगा एक्यूट, दूसरा होगा ऑब्ट्यूस। तो एंगल बाइसेक्टर्स ये दोनों होंगे। दिस इज बाइसेक्टर ऑफ दिस acute angle, let us say bisector 1, and bisector of this obtuse angle, it is bisector 2. So there are two bisectors for which we will get the equations from this formula. Clear? Next thing, every point of angle bisector is equidistant from the sides of an angle, ठीक है। अगर हमारा B1 एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस टू लाइंस, L1 से भी और L2 से भी, इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में हम किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, लेट अस से दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, clear? So in this case, if this side is M and this side is N, then this angle bisector divides the opposite side in the ratio M is to N. We have also used this fact while solving the problem on angle bisector. हमने वाला fact use किया हुआ है, ठीक है। So this angle bisector of any angle always divides the opposite side in the ratio M is to N, मतलब in the ratio of remaining two sides of the triangle, ठीक। Okay, next point. Now some standard points of a triangle. So there are, we are discussing 3 points. First one is centroid, centroid of a triangle. ये कंसेप्ट आपका फिजिक्स में भी आएगा, मैकेनिक्स पार्ट में, centroid of a triangle. Now first of all, what is the centroid? So centroid is nothing but it is point of intersection of medians is called as a centroid. Point of intersection of medians is called as a centroid. तो मैंने यहाँ पर ये तीनों मीडियंस निकाल लिए जैसे, और तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज अ सेंट्रॉइड। नाउ सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रॉइड मतलब लेट अस से G डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। और अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का जिसके वर्टाइसेस आपको मालूम है x1 y1 x2 y2 x3 y3 and you have to find out the centroid, then it is given by x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. So that is the centroid of the triangle, ठीक। Next thing, orthocenter. We have solved problems based upon this also. Orthocenter, orthocenter is nothing but point of intersection of altitudes, point of intersection of altitudes is called as orthocenter. जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल निकाला है, ठीक, मैंने सारे अल्टीट्यूड निकाल लिए, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, हाइट। तो जो वर्टेक्स है अपोजिट साइड पर आपको परपेंडिकुलर डालना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, देन इट बिकम्स अल्टीट्यूड और हाइट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री अल्टीट्यूड्स इज नथिंग बट ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर ओ डैश ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज वर्टेक्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, ओके। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर पूछा है आपसे, तो ये ऑर्थोसेंटर है, no need to calculate it. This is orthocenter of a right angle triangle. Next thing, circumcenter, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्थोसेंटर ढूंढने के लिए एक फार्मूला गिवन है, बट मैंने उस फार्मूला को लिखा नहीं है, आप देख सकते हो नोट्स में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan A tan B tan C, तो थोड़ा सा कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसमें एंगल A एंगल B एंगल C तो सारे आपको गिवन नहीं होते हैं। सो ऑर्थोसेंटर ढूंढने के लिए हम अलग एक टेक्निक यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने ढूंढा भी है पहले ऑर्थोसेंटर, उसी टेक्निक से आपको ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। circumcenter, circumcenter is nothing but point of intersection of perpendicular bisectors of sides। देखिए दोनों चीज, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स मतलब एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वर्टेक्स
उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ, तो जो डिफरेंट साइड्स है, वर्टेक्स से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, दीज आर नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, ठीक। सो दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। तो ये जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द साइड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। इन तीनों को अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालते हैं तीनों, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। अब इस सर्कम सेंटर को मान लीजिए मैंने नाम दिया O, दिस इज लेट अस से पॉइंट A B C। तो इस सर्कम सेंटर को आप रेडियस, मतलब सर्कम सेंटर को आप सेंटर ऑफ द सर्कल पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, व्हिच पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इसको अगर हम सेंटर पकड़ते हैं तो OA, OB और OC तीनों भी इक्वल होंगे और आप वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ सर्कम सेंटर। अब जब OA, OB, OC इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, वेयर O इज व्हाट, O इज सर्कम सेंटर। तो अगर हमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं जो कि x, y है, यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, ठीक। OA, OB, OC आर नथिंग बट दे आर रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। ये जो हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, और रेडियस होगी उसको भी क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस, एंड ये सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर सर्कम सेंटर आपका O हुआ, सर्कम रेडियस OA बोलिए या फिर OA, OB, OC, ऑल आर सर्कम रेडियस, and this circle form which is passing through all the three vertices of a triangle is nothing but it is a circumcircle, ठीक है। तो हमें अब यहाँ तक क्या हुआ कि हम सेंट्रॉइड आसानी से ढूंढ सकते हैं, देखिए इजीली फार्मूला है। हम सर्कम सेंटर भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये भी इजी फार्मूला है, नॉट क्वाइट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको एबीसी मालूम है तो तुरंत ही आप यहाँ से सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं, ठीक। और अगर आर्थो सेंटर आपको चाहिए तो आर्थो सेंटर के लिए मैंने बताया फार्मूला थोड़ा सा बिग है, मतलब थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ऑल दिस थ्री पॉइंट्स O dash, G and O, मतलब आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। ये तीनों भी कोलिनियर होते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट O dash, O एंड G, या फिर मैं इस तरीके से लिखता हूँ O dash, G एंड O आर कोलिनियर। और कोलिनियरिटी कैसे होती है आपकी, O dash, O, O dash, G एंड देन O, इस टाइप में कोलिनियरिटी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर शो किया, दिस इज O डैश आर्थो सेंटर, दिस इज O सर्कम सेंटर, और इन दोनों के बीच में सेंट्रॉइड होता है G। नाउ दिस G डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट O डैश O इन द रेशियो 2:1, ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर आपके पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है इस फार्मूला से मिले हुए, अगर आपके पास O के कोऑर्डिनेट है सर्कम सेंटर के यहां से मिले हुए, तो आप इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं O डैश के। You can find out coordinate of O dash using section formula for internal division because G divides the segment O dash O in the ratio 2:1। तो एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका हमने निकाला हुआ भी है। आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको ढूंढने हैं, so what you will do, you will find out any two altitudes, इक्वेशंस ऑफ एनी टू अल्टीट्यूड्स, किसी भी दो अल्टीट्यूड के हम इक्वेशन निकाल लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे, देन अगेन इट विल बी अ आर्थो सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई डाउट है क्या, पूछिए। आज का होमवर्क है 8.2.1 वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। सो देयर में बी अराउंड 50-55 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है एक बार देखिए।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 8.2.1 वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बताइए, 50 या 55 होंगे। तो बुक लेके नहीं बैठा हुआ है क्या? फिफ्टी एट क्वेश्चन आर देयर। तो देखिए कल भी 58 ही आए थे आपके हिस्से में, आज के लिए भी 58 क्वेश्चन है। तो आप 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आज के लिए, ठीक है। 58 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से जो भी डाउट है आप मुझे सेंड करिए। क्लियर? ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल। देखिए वर्ड में यूज करता हूँ 58 है, मान लीजिए आप 40 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, बट कुछ तो क्वेश्चन आप करिए। बाकी ये नहीं कि आपने छोड़ देना है, बाकी आप बाद में भी कर सकते हैं, बट आज कम से कम मोर देन आपका होना चाहिए। आज अगर आपका टारगेट 58 है तो मोर देन 30 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। और उसमें जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड करिए, फिर कल हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसकी भी थ्योरी जो बाकी है आगे की। अच्छा, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इट इज सिलेबस ऑफ 12th स्टेट बोर्ड, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इट इज सिलेबस ऑफ 12th स्टेट बोर्ड, तो कल हम पढ़ेंगे उसे, ठीक है।